Welcome back, guys. In this video, we are gonna learn about HTML5's useful tags. And it's my promise that after watching this video, you will don't have any doubts on useful tags of HTML. Let's begin. The things we will learn today are div tag, span tag, heading tags, p tag, anchor tag. P tag means paragraph tag, by the way, and apply some CSS over them. The timestamps will be in the description if you want to see any specific chapter. First part of our video contains div tag and span tags. In simple words, div tag means the division of your website. Like here is the div, you can see the syntax. Here is the div tag. It opened right here, and this is your content which will be displayed on the screen, and the div tag closes. This is a full size tag which has an opening tag and then closing tag. So remember to add the closing tag. This is a block level element. Block level element in the sense that you made a div on the top of your website. Another div can't go in the side of that. It has to go under it. So that's called a block level element. Remember it. Div are always placed under another element or under another div and can be modified using CSS. If you add some CSS on it, it can be placed side by side. Don't worry about that, okay? Now let's move on to our span tag. In simple word, span tags mean a smaller part of a div or your whole web page. Now what you can see, span is a smaller part, div is a large part, span is used for a smaller part, and this is an inline element. Now as we saw, this is a block element, div is a block element. Now what is inline element? And let me say that span tag has a similar syntax like div tag. As you can see, span, closing tag, span tag, and this is the content. You got that. This is inline element. What is inline element? Inline element is which element where multiple elements can be placed in a line, means horizontally. Here is the span, another span can be here. While div is, here is the div. If this black box is the div, another div can't be here. It has to be here. But in span, the two spans can be side by side. This can also be modified using CSS. Now let's move on to our second part of the video. It contains about heading tags. Heading tags are primarily used to add headings in our web pages. Like as you can see, the main thing that H1, 2, 3, 4, 5, 6, as you can see here, these 6 tags exist which differs in its font size. I will show you in a moment. H1 is the biggest. Like as you can see, this is the size of H1 text size. This is so big. So H1. Now this is the size of H6. In the place of 1, only there is 6. And the size, as you can see, there is very small. So the font size decreases as the number increases. We know that. Now you can also apply some CSS over it to make it red, blue, green, or any color you want. You can change the background. As you can see, this is white. You can change this to green, blue, white, anything you want. CSS is the key to anything you want for the design. Now let's move on to our third part of the video. This part contains about paragraph tag and anchor tag. The paragraph tag, I said, is written as angular brackets, P, angular brackets. P tag mainly means paragraph, which is used to add simple text in our web pages. Like this doesn't have any specific font size. You can increase or decrease it. This is made for that, so you can customize it easily. And this tag here is also used to break lines, but I hardly don't recommend it because we have CSS. We don't need HTML to make the design of our web page. So just use it to insert text in your website
I'm saying you again, don't use it to break lines. This makes the document more cluttery and it destroys the cleanliness of your web page. Okay, so don't use that. We can use CSS. And our second tag is anchor tag. Anchor tag is used to link an URL of website or any particular element of a specific web page. For example, a button which takes us to Google. The text here, the blue colored text with an underline, what you will know this is. Obviously, this is a link. If we click over here, we can go to another place. And the bare syntax is angular brackets, A, angular brackets, this is the text, means this will be the link. This, as you can see, this text will be the link. This text will be the link. If we click on this text, we will be redirected to google.com and the anchor tag closes. Now, where are we going to redirect it? Only Google? No, we can go anywhere. So how can we define that? We can define that using href tag, href attribute, href equal to double quotes www.google.com or any website, any website you can think of in this world. Everything will work with this. I have used Google here. So if we click on this link, we will be redirected to Google. I will show you in a moment. ऑलराइट गाइज, हमने अपने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है, बहुत कुछ हमने समझ लिया है। अभी हम लोग इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखते हैं। सिर्फ थियोरी में मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, ये मेरी गारंटी है। तो फिर सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, इट विल ओपन जस्ट लाइक दैट। ये अपना ओपन हो चुका है। और ये पहले जो आएगा ना, गेटिंग स्टार्टेड वाटेड, ये क्लोज कर दीजिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं फर्स्ट स्टेप जो बताऊंगा वो आप जाइए यहाँ पे फाइल में, ओपन फोल्डर करिए और आपका जो भी फोल्डर है जहाँ पे आप लोग अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं उस वाले फोल्डर को चूज कर लीजिए। मैंने यहाँ पे HTML ट्यूट सीरीज करके फोल्डर बना रखा है। फटाक से अंदर घुसेंगे, सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए HTML ट्यूट सीरीज करके एक फोल्डर आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को अभी क्या करना है, इसके एकदम जो लेफ्ट वाला आइकन है ना, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। एकदम जो ये लेफ्ट वाला आइकन है, इस वाले आइकन में आपको क्लिक कर देना है एक बारी, बस सिंपल क्लिक। नाउ व्हाट वी हैव टू राइट इज, यहाँ पे देखिए कर्सर आ चुका है। आपको यहाँ पे लिखना है, आप कुछ भी लिखिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा tut6.html। अभी मैंने बोला ना कुछ भी लिखिए, तो फिर ये .html को लिखना ही है, .html को नहीं भूलना है। .html ये जो एक्सटेंशन है .html, इसको लिखना है। बहुत लोग इसको नहीं लिखते, फिर बोलता है मेरा तो काम नहीं किया, मेरे को गलत सिखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। .html को लिखना होता है। ये जो डॉट के पहले से आप कुछ भी लिखिए, दिस डजंट मैटर, आप कुछ भी लिखिए, अपना नाम लिख दीजिए, अपने पापा का नाम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ नहीं होगा इससे। कि डॉट के बाद से .html लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं अगर ये एम्प्टी स्पेस में क्लिक कर दूंगा तो फिर यहाँ पे ये अपना डॉक्यूमेंट खुल चुका है। नाउ आई विल फर्स्ट रिकमेंड यू टू डू व्हाट आई एम डूइंग। आपने एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है, जो कि 1 के ऊपर होता है ना, शिफ्ट दबा के 1 करेंगे। ओफ, क्या हो गया यहाँ पे? अगर हम लोग शिफ्ट दबा के 1 करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ चुके हैं, यहाँ पे लिख के भी आ चुके हैं एमेट एब्रीवेशन। एंटर मारेंगे, पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट आ चुका है, देख लीजिए। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट की जगह में लिख देता हूँ ट्यूट, कौन सा ट्यूट है, 6 विथ ट्यूट 6। डन। बॉडी के अंदर कुछ लिखते हैं, जैसे कि मैं अभी सिंपल लिख देता हूँ, हेलो हेलो आई एम learning HTML with Mayuk। ओके, हेलो आई एम लर्निंग HTML with Mayuk। अभी इसको लाइव सर्वर में खोलते हैं। मैंने आपको सिखाया है लाइव सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको सीखना है तो फिर यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं
कि लाइव सर्वर आपको कैसे इंस्टॉल करना है। नाउ यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि जस्ट यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में राइट क्लिक करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर, यहाँ पे देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर, इसको करना है। आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा, आप उस वीडियो को देखकर जब तक सेटअप नहीं करेंगे आपका ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है, हेलो आई एम लर्निंग HTML विथ मयूक। मैं इसको साइड बाय साइड लगा दूंगा, ठीक है। मैंने इसको साइड बाय साइड लगा दिया। अभी हाँ, अभी पहले हमने क्या एलिमेंट सीखना है, पहले हमको सीखना है div। ऐसे एक सेकंड के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा div, ओके, div। टैब दबा देना है। ये मैं नोटपैड यूजर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, नोटपैड यूजर्स को ये पूरा लिखना पड़ेगा, एंगुलर ब्रैकेट्स, फिर div, फिर ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, ये सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड में होता है। div लिख के टैब दबा दिए, पूरा आ चुका है, ठीक है। अब ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच वाला जो स्पेस है, जहाँ पे आपको अपना कंटेंट लिखना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज माय फर्स्ट div, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट div आ चुका है, देखिए। और मैंने आपको बताया था कि क्लास और आईडी कैसे डालना है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं डालूँ क्लास, टैब करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे div1 और आईडी डाल देंगे div1, तो इसको div कर देंगे, ठीक है। क्लास div, आईडी div1, ठीक है। यहाँ पे ये div आ चुका है, देखिए ये div में है। लेकिन आप कहेंगे तो फिर तो मैं पैराग्राफ टैग यूज कर लेता। मैं आपको इसे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो फिर आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको एक टेक्स्ट को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, आपको फिर समझने में आसानी होगी। टेक्स्ट हटा दिया, अभी भी देखिए यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे लिख के आएगा ना, ये देखिए div1, यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है। तो फिर यहाँ पे div अभी भी मौजूद है, लेकिन पैराग्राफ टैग में ऐसा नहीं होता। आपने जैसे ही टेक्स्ट हटाया वो एलिमेंट भी हट जाता है। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अब भी मौजूद है। मैं ज़रा कंसोल को बंद कर दूँ। अभी थोड़ा सा CSS करके इसे समझते हैं। स्टाइल टैग दूंगा, सिखा दिया है मैंने आपको पहले से ही। अगर आपको CSS का इंट्रोडक्शन देखना है, फिर से यहाँ पे आई बटन में लिंक आ जाएगा, देख लेना। अब स्टाइल टैग में हम लोग लिखेंगे कि सिलेक्टर्स मैंने आपको शायद से नहीं पढ़ा है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी आगे वीडियो आएगा CSS का। सिलेक्टर होता है ये div को पकड़ने के लिए, ठीक है, CSS को बताने के लिए कि किस कौन से वाले div को आपको स्टाइल करना है। क्या लिखूंगा मैं, देखिए डॉट div, ये मैंने इस क्लास को टारगेट किया है। क्लास मतलब ये इसका क्लास और आईडी इसको एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं, जिससे हम लोग इसको टारगेट कर सके। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लास दे रखा है, क्लास मैंने यहाँ पर डॉट div एंटर करेंगे। और मैं अगर इसको करूँ बैकग्राउंड समथिंग, एक वायलेट सा कलर लग देते हैं। और ये अभी यहाँ पे नहीं आया, आप लोग कहोगे कि क्या कर दिया यार, आया ही नहीं। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं इंस्पेक्ट करके तो बॉडी और div यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 0 आएगा, यहाँ पे देखना एक 0 आएगा। यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि 134 by 0 pixel। what does it mean? That means our div has no height, its height is 0 pixel, so we have to give it some height. For that we have to write height tab and just write anything not crazy, 500 pixel, let's say 500 पिक्सल। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। अभी आप कहेंगे ये तो मेरा पूरा बंद ही कर दिया, पूरा स्क्रीन घेर लिया। फिर आप क्या करेंगे, इसको एक विड्थ दे देंगे, विड्थ 500 पिक्सल, 500 पिक्सल की विड्थ दे दिया। अगर मैं इसको कमा के अगर 400 बाई 400 कर देता, सेम होता, छोटा हो जाता, और क्या होता, कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ पे छोटा हो जाएगा। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ div, और मैं इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कुछ कलर दे देता हूँ,
ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद है, देखिए ग्रीनिश कलर आ गया, ये कलर मुझे बहुत पसंद है। तो फिर डिव हमने सीख लिया। अभी हम लोग सीखते हैं क्या है अपना नेक्स्ट, स्पैन। स्पैन टैग। और मैं आपको एक चीज बताते चलता हूँ कि यहाँ पे तो मैंने डिव वाले आईडी को, क्लास को सिलेक्ट किया। मुझे यहाँ पे डिव वाले आईडी को कैसे सिलेक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे डॉट की जगह हैशटैग डाल के div1 कर देना है। ठीक है, div1 है और यहाँ पे हैशटैग डालना है, बस यही है फंडा। और हाँ, एक और चीज़ आपको दिखाना था, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक और डिव बनाऊँ, मैं अगर यहाँ पे एक और डिव बनाऊँ और उसमें एक क्लास डाल दूँ, ना क्लास नहीं, आईडी डाल देते हैं, चलो div2। और जो div2 है, div2 make it make some bigger in height or 40 pixel and width will also be 40 pixel। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, मैं 40-40 कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ही 40-40 करना है। आप 40-90 भी कर सकते हैं, आप 90-40 भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज अलाउड, सॉरी, एवरीथिंग इज अलाउड। अब यहाँ पे इसको एक बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड will be let's say cyan। तो देखिए यहाँ पे ये नीचे आ चुका है, फुल स्क्रीन में देखिए यहाँ पे ये नीचे आ चुका है, क्यों, ये नीचे क्यों आएगा, इसे तो यहाँ पे आना चाहिए, कितना सारा जगह पड़ा हुआ है, फिर भी नीचे आ चुका है। तो फिर जो मैंने आपको बताया था ना कि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कभी भी साइड बाय साइड नहीं जाएगा जब तक मैं उसको सीएसएस नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको सभी सीएसएस नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग को वो समझ में नहीं आएगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि div सीएसएस के बिना किसी के भी साइड में नहीं आ सकता। ओके, div can't come in the side of another element, we know that। अभी हम लोग div के इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल+/, जब ये कमेंट कर देते हैं कंट्रोल+/ करके, मैं आपको सारे सोर्स कोड ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, बस सारे सोर्स कोड आपको मिल जाएंगे। अभी हम लोग को क्या करना था, स्पैन, यस स्पैन। स्पैन में अगर मैं लिखूं दिस इज स्पैन, स्पैन वर्क्स ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक div, बट मैंने जो आपको यहाँ पे दिखाया था ना टेक्स्ट हटा के, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि div और स्पैन दोनों करीब करीब एक है यार, कितना देखोगे, दोनों करीब करीब एक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग स्पैन का डिफरेंस क्या है, फिर तो हम लोग div ही यूज कर लेंगे, स्पैन फैन क्यों करना है। देखिए भी दिस इज स्पैन, यहाँ पे देखिए आगे दिस इज स्पैन। भी मैं अगर इसको स्पैन करके टारगेट करूँ, और हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं इसको, टैग नेम से भी हम लोग इसको टारगेट कर सकते हैं, रिमेम्बर दैट। अगर हम इसको दे बैकग्राउंड कलर ऑफ रेड में भी, हाँ रेड इज लुकिंग हॉरिबल यार, ये वाला कलर दे देते हैं, ये मुझे फेवरेट लगता है। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, इसका कोई, और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि स्पैन का जो है, इसका कोई, रुकिए मुझे खोलने दीजिए। स्पैन का देखिए यहाँ पे कोई इनबिल्ट हाइट नहीं होता, जबकि div अगर मैं इसको मैं अनकमेंट करूँ, अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ और इसे हटाते हैं, div को अगर मैंने अनकमेंट कर दिया, लेकिन div को देखिए 134 इसका विद है, इसका टेक्स्ट हटा देते हैं भाई, अभी देखिए विद इसका रहता ही है, देखिए विद इसका रहेगा 134 पिक्सल, इसका विद रहेगा, लेकिन हाइट इसका 0 पिक्सल है। लेकिन जो अपना स्पैन है वो 0 0 है, वो 0 0 है, उसको जब तक आप लोग हाइट विद नहीं देंगे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोग को हाइट विद भी दे देंगे टाइम बाय टाइम, तो फिर ये एक स्पैन है। अभी हम लोग अगर एक और अगर स्पैन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, एक और स्पैन बना लेते हैं, चलो फटाफट से। आ, मैंने ये कैसे किया, मैंने ये किया, इसमें कर्सर लाया
ऑल्ट प्लस शिफ्ट पकड़ के डाउन एरो दबा दिया, देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुके हैं। देखिए ये साइड बाय साइड आ रहा है, जबकि डिव नहीं आता था। डिव आपको हमेशा नीचे नीचे आता था, जितना भी वो छोटा हो, लेकिन स्पैन देखिए यहाँ पे साइड साइड में आ रहा है। तो फिर हमको पता चल गया कि ये एक इनलाइन एलिमेंट है जो कि हमेशा साइड बाय साइड में आएगा। अभी हम लोग को क्या देखना था, नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सीख लिया हमने स्पैन को। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है पैराग्राफ एलिमेंट। पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिखूं, हाय दिस इज आवर paragraph. This is our paragraph. This can be of any length. ये जितना भी आप लंबा कर सकते हैं इसको, 400 वर्ड 4000 वर्ड्स तक भी कर सकते हैं इसको, कोई इसका टेंशन नहीं है। जितना भी लंबा करे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ पे अभी आप सोचेंगे तो भी स्पैन में भी तो टेक्स्ट आ रहा था, डिव में भी टेक्स्ट आ रहा था, इसमें भी टेक्स्ट आ रहा है। तो फिर पी टैग को हम लोग मेनली टेक्स्ट ऐड करने के लिए यूज करते हैं। और पी टैग भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग अगर करें बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर होंगे अपना वही फेवरेट कलर ग्रीनिश, और इसका, और देखिए ये पूरे विद को ले लेता है। मैं आपको बताना भूल गया कि पी टैग पूरे स्क्रीन के विद को ले लेता है, जब तक आप इसको कोई डेडिकेटेड विद नहीं देंगे। मैं अगर इसको विद दे दूँ ऑटो, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, तब भी ये फुल ही रहेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये सच्ची में क्या ब्लॉक लेवल है। हम लोग ऑल्ट शिफ्ट करके डाउन एरो दबाएंगे, दूसरा आ जाएगा। देखिए इसके नीचे आ चुका है, यहाँ पे देखिए इसके नीचे आ चुका है। ये इसके ऊपर, ये इसके साइड में नहीं गया। अभी आप लोग कहेंगे इसका तो पूरा तो ऑक्यूपाई कर रखा है, कहाँ जाएगा। तो फिर मैं इसको विद भी दे दूंगा आपको सिखाने के लिए। मैं इसको विद दे देता हूँ। विद हम लोग अगर दे देंगे लेट्स से 600 पिक्सल, दस बिगो 300 पिक्सल मे बी। हाँ, यहाँ पे देखिए 300 पिक्सल में, इसको तो साइड बाय साइड में आना चाहिए था ना, फिर भी ये तो नीचे नीचे आ चुका है। सो वी नाउ नो दैट p tag is an block level element. अभी हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट टैग के ऊपर, जो कि है अपना एंकर टैग। ए लिखूंगा, टैब करूंगा, एंकर टैग आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट टू गो टू गूगल। क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट टू गेट टू गूगल। ठीक है, यहाँ पे मैं गूगल का URL डालूंगा। वो कैसे लाएंगे, जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल। ठीक है, गूगल सर्च करेंगे, यहाँ पे गूगल में घुसेंगे, फिर यहाँ पे एक बारी क्लिक करेंगे, फिर से एक बारी क्लिक करेंगे, तो फिर देखिए यहाँ पे ये URL आ चुका है। एक बारी क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, URL आ चुका है। इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया, गूगल को भी हम लोग क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे ये जो href एट्रीब्यूट है ना, इसके डबल कोट्स के अंदर हमको इसे चिपका देना है। ठीक है, चिपक गया। अभी अगर हम लोग ये वाले टेक्स्ट के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर हमको गूगल में जाना चाहिए। होपफुली हम लोग चले जाए। लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड वी आर इनटू गूगल। हम लोग गूगल में आ चुके हैं। अगर मैं फिर से बैक में जाऊँ और मैं यहाँ पे गूगल में क्लिक करूँ, क्लिक किया, गूगल में आए, फिर किया, गूगल में आए, फिर किया, गूगल में आए, तो फिर ये जो टेक्स्ट है ये गूगल में ले जाने के लिए टेक्स्ट बन चुका है। और इसमें आप लोग कुछ भी URL डाल सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोग कुछ भी URL डाल सकते हो। तो फिर हम लोग समझ गए कि एंकर टैग में href एट्रीब्यूट में जो भी URL रहेगा वही URL में ये टेक्स्ट हमको रिडायरेक्ट कर देगा। सो आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।